आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। साले 9 2020 के मौके पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद की आवाम को मुबारकबाद पेश किया और राजभवन में अवामी दरबार का एहतमाम किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया के हालिया दौरे के मौके पर रामनाथ कोविंद ने खून का अतिये से मुतालिक रेड क्रॉस सोसाइटी का एक ऐप लॉन्च किया जिसके जरिए खून का अतिया देने वाले और खून के जरूरतमंद इस्तेफादा कर सकते हैं। गवर्नर ने बताया कि उन्होंने जब से तेलंगाना की गवर्नरी संभाली है तब से राजभवन की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। हाल ही में गवर्नर ने ट्राइबल तबके के नुमाइंदों की जानिब से एक अर्जी वसूल किया और अर्ज गुजारों की शिकायत की एक सुई के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस को हिदायत जारी किया। ऐसे शिकायतों को कम करने के लिए गवर्नर ने फैसला किया है कि वो राजभवन में सालाना अवामी दरबार के अलावा माहाना दरबार का भी एहतमाम करेंगी। इस मौके पर स्पीकर तेलंगाना असेंबली, चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल, नव मुंतखिबा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, कैबिनेट मिनिस्टर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना, ग्रेटर हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स के अलावा आवाम की कसीर तादाद ने गवर्नर को नए साल की मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। 2020 should be a very prosperous year of development and year of prosperity, happiness and healthiness for each and everyone. Raj Bhavan is moving forward with so much of positive activities. Recently, our Honorable President released an app which helps the Red Cross Society to guide the donors about the availability of the blood and the availability of the place where it is and the need of the blood and the group of the blood. And this is an unique app created by Raj Bhavan with association with Red Cross and by the Center for Good Governance, and it's going to be helpful to not only to Telangana, but it has been created in a way it could be modified according to the need of each and every other states also. So it's a great service to the mankind as it is dealing with the blood donors and blood groups. And apart from that, we have conducted so many programs in a positive way. We went to the tribal area and we interacted with them, and we are going to call the village Bodogudam village tribals. We have invited them. Next month they are going to come to Raj Bhavan because they gave a good reception at their place, and we are going to call them to Raj Bhavan, and actually they presented some memorandum for some of the requests, and we have appealed the government, and the tribal affairs minister has informed me that the need of the village will be fulfilled by the government. And apart from that, we conducted the Disabled Day. We want to be a supportive force to them, and we donated aids to them. Like that, Raj Bhavan is moving forward with positive activities. And apart from that, we are daily meeting people. At least 15 to 20 requests are considered favorably, and who are all the organizations want to meet the governor. The appointments are given to them, and we have an idea of meeting the people once a month
who are all want to submit their memorandum, and we are planning it in a very systematic way so that a very good follow-up will be there, and what all their requests that will be followed very positively. So with all these positive activities, I wish you all a great 2020. तेलंगाना गवर्नमेंट ने रियासत के नए चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से आईएएस ऑफिसर्स के 1989 बैच से ताल्लुक रखने वाले सोमेश कुमार का तकर्रुर अमल में लाया है, जिनकी मियाद 31 दिसंबर 2023 तक बरकरार रहेगी। साबिका चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी की मियाद आज खत्म हो जाने के बाद इन्हें इरिगेशन डिपार्टमेंट का एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। मरकजी हुकूमत के सीएए व एनपीआर के मुताबिक नए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार रियासत बिहार से ताल्लुक रखते हैं और अभी तक तेलंगाना में कई बड़े ओहदों पर फायज रह चुके हैं। आज इन्होंने अपने नए ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। नए साल 2020 के आज के पहले दिन आम छुट्टी के तनाजुर में शहर हैदराबाद में वाक़े बर्र सगीर के मशहूर ज़माना नेहरू जूलॉजिकल पार्क में आवाम का अज़्दहाम आ जाने की इत्तलाएं ज़ोरों पर रही। इंतज़ामिया ने खबर दी है कि जारिया साल का पूरा बदला आज आवाम ने एकदम निकाला और 33,000 से ज़ायद लोग ज़ू की तफरीह के लिए आ गए, जिसके लिए इंतज़ामिया को आवाम के लिए रश की खातिर टिकट्स के काउंटर में बढ़ोतरी करनी पड़ी। ज़ायद सिक्योरिटी के इंतजाम भी करने पड़े, जिसमें 3 फर्स्ट एड सेंटर्स और नर्सेस के अलावा एनिमल एनक्लोजर्स के पास निगरानी भी बढ़ा देनी पड़ी। लिहाजा जू इंतजामिया ने इस शुभ अवसर पर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए नए साल की सभी को मुबारकबाद भी पेश की। नए साल की आमद के मौके पर आवाम की बेराह रवियों पर काबू पाने के लिए आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता स्टाफ ने कल शब हैदराबाद के मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 20 के पास वाक़े गुड्डी मलकापुर इलाके की सड़कों पर ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ में ज़बरदस्त अभियान चलाया और शराब नोशी करके गाड़ियां चलाने वाले 41 टू व्हीलर्स, 1 ऑटो और 3 कारों को शराब का परसेंटेज 241 आ जाने पर हिरासत में ले लिया। लिहाजा सभी लोगों ने महकमे पुलिस के साथ कल सारी रात नया साल मनाने की कोशिशें की। ఈరోజు ఇక్కడ 31st నైట్ ఈ కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఎవరైతే సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటారో వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ తాగిన కండిషన్లో వెహికల్ నడిపి వాళ్ళు ఎటువంటి ఇంజురీస్ కానీ లేకుంటే కనుక వాళ్ళకు చనిపోవడం అలాంటి జరగకుండా ఉండాలని చెప్పేసి అని మా ట్రాఫిక్ ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఆసిఫ్ నగర్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఇక్కడ మన గుడిమల్కాపూర్లో ఒక పాయింట్ ప్లస్ మెహదీపట్నం బస్ స్టాప్లో ఒక పాయింట్, మొత్తం 2 పాయింట్లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ నేను మరియు ఇంకొక 10 మంది సిబ్బంది కలిసి ఇక్కడ గుడిమల్కాపూర్లో 11 o'clock నుంచి ఇక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాము। అలాగే మెహదీపట్నంలో సైడ్ రాఘవేంద్ర గారు ఒక 10 మంది సిబ్బందితో అక్కడ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు। ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం ఇంతవరకు మేము ఒక 22 వెహికల్స్ నడుపుతున్న వారు ఎవరైతే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద కేసులు బుక్ చేసినాము। అందులో ఒక 20 టూ వీలర్ ఉన్నాయి, ఒక 2 ఏమో ఆటోలు ఉన్నాయి।
शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के रूबरू आग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून उस्मानिया दवाखाने में इलाज के दौरान आज जांबर न हो सकी है। सब इंस्पेक्टर नागराजू ने बतलाया है कि चेन्नई के मुतवत्तिन 37 साला एस लोकेश्वरी नामी यह खातून अपनी किसी परवीन नामी रिश्तेदार को ढूंढने के लिए कुछ अरसा कबल हैदराबाद आई हुई थी। एक मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान कबल अज मर्ग से ये इत्तला सामने आई है। पुलिस इस सिलसिले में एक केस बुक करके परवीन नामी शख्स की तलाश से जुड़ गई है। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम किए जाने के सिलसिले में नए साल 2020 के शुभ अवसर पर रियासत आंध्र प्रदेश की आरटीसी की 12 रीजन्स और 128 डिपो के मुलाजमीन ने आज थैंक यू सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी केक कटिंग सेरेमनी का एहतमाम किया और सीएम की दराजी उम्र के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी बनाए जाने वाले वजीर ट्रांसपोर्ट पी वेंकटरामैया ने विजयवाड़ा डिपो की तकरीब में शिरकत करते हुए सभी को समझाने की कोशिश की कि हुकूमत आरटीसी वर्कर्स के अलावा सभी महकमों से खास तौर पर जुड़ी हुई है, जबकि आरटीसी के 51,000 मुलाजमीन को हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों की इजराई नए साल से शुरू कर दी जाएगी और साथ में वाजिब अलाउंसेस भी जारी किए जाएंगे। शहर हैदराबाद में वाक़े ओएस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से नए साल की एक तकरीब बड़े ही आलीशान पैमाने पर मनाई गई, जिसमें स्कूल के फाउंडर उस्मान सादी की सदारत में औलिया तुलबा की कसीर तादाद के साथ साथ शहर की कई जी असर शख्सियतों ने भी शिरकत की। इस मौके पर माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स और ख़वातीन को मुख्तफी बनाने के लिए बहुत सारी सिलाई मशीन्स की तकसीम अमल में लाई गई। साथ ही वैरायटी प्रोग्राम्स पेश करने वाले तुलबा व तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। टीआरएस पार्टी के शहर हैदराबाद में वाक़े प्रगति भवन में नए साल के मौके पर एक ज़बरदस्त अंदाज में तकरीब सजाई गई, जिसमें शरीक होते हुए कई रियासती वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने सीएम केसीआर को नए साल की मुबारकबाद पेश की। उसमें शामिल थे असेंबली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी, नए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, ट्रांसको सीएमडी डी प्रभाकर राव, टीपीपीएससी चेयरमैन प्रोफेसर जी चक्रपानी के साथ साथ बहुत सारे एमपीज, एमएलएस, एमएलसीज, जिला परिषद चेयरपर्सन्स, कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, कई महकमों के कमिश्नर्स वगैरह वगैरह। एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनार्दन रेड्डी ने इस मौके पर अपनी जानिब से तैयार करदा एक मुनफरिद मॉडल डिक्शनरी भी सीएम केसीआर को भेंट की, जबकि सीएम केसीआर ने यादाद्री आइनावोलू टेम्पल कैलेंडर्स की इस मौके पर रस्म इजराई अमल में लाई।
रियासत तेलंगाना के कई इलाकों में हालिया दिनों तक ठंड की जबरदस्त लहर के चलते कुछ इलाकों में बारिश की बूंदाबांदी की वजह से लोगों को गुलाबी जाड़ों का बस मजा ही आ गया। वैसे मौसम के आंख मुचौली खेलने वाले माहौल में भी लोग नए साल की खुशियां मनाने में पीछे नहीं हटे, जबकि तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के बमूजिब हैदराबाद के शेखपेट में अचानक बारिश 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड में आई और आसपास के बहुत सारे इलाकों में भी बारिश का समा जबरदस्त अंदाज में देखा गया, जिसकी वजह से शहर के दर्जे हरारत में मजीद नुमाया कमी वाक़ई हो गई। तेलंगाना के डायनामिक सीएम केसीआर ने आज रियासती अवाम के साथ साथ सारे मुल्क के लोगों को नए साल 2020 की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की है। आगे इन्होंने बतलाया कि नए साल में सारी रियासत तेलंगाना को ईयर ऑफ लिटरेसी के तौर पर बनाया जाएगा, जिसके लिए इन्होंने नया नारा दिया, ईच वन टीच वन। इस तरह से सारी रियासत में तालीम आम हो जाएगी, जबकि दीगर जुमरों में टीआरएस हुकूमत की 6 साला कारकर्दगी में तेलंगाना रियासत सारे मुल्क में अभी नुमाया मुकाम हासिल कर चुकी है, इन्होंने बतलाया। और नए साल में साबिका हुकूमतों की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने वाले तालीमी माहौल पर दोबारा नजरें डाली जाएंगी और तेलंगाना को तालीमी मैदान में पूरा का पूरा ऊंचा उठा दिया जाएगा। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए नए साल की मुबारकबादियां देते हुए बतलाया कि हुकूमत का कालेश्वरम प्रोजेक्ट पड़ोसी रियासत से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद पर मुमकिन हो सका है। इन्होंने कहा कि टीआरएस के सीएम चंद्रबाबू नायडू पीरियड में भी अच्छे ताल्लुकात थे और सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी के दौर में ये और मजबूत हो गए हैं और गोदावरी और कृष्णा नदियों के प्रोजेक्ट्स को भी मजबूती हासिल हो गई है। आखिर में इन्होंने बल्दिया इंतखाबात में टीआरएस पार्टी की जीत को यकीनी बतलाया है। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बर्रे सगीर की मशहूर जमाना हैदराबाद में सालाना जनवरी तक फरवरी तक चलाई जाने वाली 80वीं ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का आज इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ मौजूद थे हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन, रियासती वजीर सेहत व नुमाइश सोसाइटी के सदर इटाला राजेंद्र, दूसरे रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव के साथ साथ नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रसाद राव और दीगर कई मेंबर्स भी वहां पर मौजूद थे। एग्जीबिशन के जो चेयरमैन है और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ईटा राजेंद्र को मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो जब से एग्जीबिशन सोसाइटी के सदर बने बहुत सी तब्दीली लाई जा रही है। मैं समझता हूँ 80 साल में कभी भी इतना काम एग्जीबिशन में नहीं हुआ जो इस साल इतने प्रिकॉशन लिए गए, उसके लिए मैं तमाम सोसाइटी के मेंबर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिनसी तनासानी सिन्हा के उसी तरह एग्जीबिशन में भी काफी तब्दीली लाई गई है। लास्ट टाइम एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, वो काफी बढ़ चुका था, मगर ऊपर वाले का फजल रहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बहुत तेजी से एग्जीबिशन सोसाइटी वालों ने भी तो बहुत ताउन करते हुए फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तरह काम करते हुए उसे कंट्रोल किया गया। अगर यही स्टेट किसी और स्टेट में होता तो कई लोगों की जान चली जाती थी। मगर हमारी खास बात ये कि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हर डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया, उसमें खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट और फायर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम करा है। मैं हिंदुस्तान में शायद ये पहला इदारा ऐसा होगा जिसमें 100% जो भी इनकम आती है वो एजुकेशन पर खर्चा किया जाता है। 18 कॉलेजेस ऐसे चल रहे जिस तरह हमारे अभी मेयर साहब भी गए, तलासानी ने अन्ना भी बोले और सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको डिटेल। मैं समझता हूँ शायद कहीं ऐसा इदारा नहीं है, जहाँ कहीं ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ की దేశంలోని హైదరాబాద్ నుమాయిష్ హైదరాబాద్ ఎగ్జిబిషన్ అంటే కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు గుజరాత్ నుంచి మొదలుపెట్టి కంపెనీలకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులు కానీ వ్యాపారం చేసుకుంటారు కానీ మాదొక స్టాల్ పెట్టుకోవాలనేటువంటి గొప్ప భావనతో ఇక్కడ సంవత్సరాలుగా వచ్చినటువంటి అనేక మంది కస్టమర్లు ఉంటారు.
మొదట్లో ఉత్పత్తులని ప్రచారం చేసుకోవాలి, ఉత్పత్తులకి వ్యాపార మార్గాన్ని అన్వేషించుకోవాలని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈ సొసైటీ వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని ఒక మంచి పర్పస్కి వాడాలి అని చెప్పి ఆనాడు మొట్టమొదటిసారిగా విద్యను వ్యాప్తి చేయడానికి ఇక మా ఎకనామికల్ కమిటీ కావచ్చు, మా ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ కావచ్చు, అందరూ ఆలోచన చేసి వాళ్ళందరూ మన కుటుంబ సభ్యులు. ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్. ఈ ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఒక వ్యక్తికో ఒక సంస్థకో పరిమితమైనది కాదు. ఇందులో 80 సంవత్సరాలుగా అనుబంధాన్ని పెంచుకున్నటువంటి మా స్టాల్ పెట్టిన వాళ్ళు కావచ్చు, మనం కావచ్చు, వాళ్ళకి నష్టం జరిగితే మనకు జరిగినట్టు అని చెప్పి భావించి ఎవరు కోరకుండానే, ఎవరు డిమాండ్ చేయకుండానే వాళ్ళని ఆదుకోవాలని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా డబ్బుల ముఖం చూడకుండా ఆదుకొని భరోసా ఇచ్చినటువంటి సొసైటీ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ. కానీ పోయిన అనుభవాన్ని మేము గుణపడంగా తీసుకొని ఇంత పెద్ద ఎగ్జిబిషన్కి, ఇంత చరిత్రకరమైన ఎగ్జిబిషన్కి, ఇన్ని లక్షల మంది వచ్చేటువంటి ఎగ్జిబిషన్కి ఇవాళ సేఫ్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి, డబ్బులకు వాళ్ళ ఆస్తులకి రక్షణ కల్పించాల్సి ఉందని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ తోటి సలహాలు తీసుకొని ఒక 3.5 కష్టంగా ప్రతి ఇంచు మీద ఇవాళ ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోబడ్డాయని చెప్పి మనం చేస్తాము. అంతకుముందు ఏ ఓపెన్లో కరెంటు వైర్లు అవన్నీ కూడా తీసేసి దాన్ని అంతా అండర్ గ్రౌండ్ కేబుల్ రూపంలో చేసుకున్నాం. ఒక్క మాట చెప్పాలంటే నంబర్ ఆఫ్ షాప్ల కంటే కూడా సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్, భద్రత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి భావించి ఇవాళ ఒక 20-25% బిజినెస్ తగ్గినప్పుడు కూడా దీన్ని మొత్తం స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకున్నాం. ఇవాళ జిహెచ్ఎంసీ కావచ్చు, ఇవాళ ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स साइबराबाद, राजाकुंडा और हैदराबाद में आज हर जगह पर बड़े बड़े केक्स के साथ नए साल 2020 का जश्न मनाया गया। तीनों कमिश्नरेट के कमिश्नर्स ने इस मौके पर केक काटे और सभी का मुंह मीठा करते हुए सभी को नए साल की मुबारकबादियां पेश की और आवाम को कई नुकात से रोशनास भी करवाया। हमारे माहौल की मशहूर नज़म चंदा मामा दूर के ये तो सभी को ज़बानी याद होगी ही, लेकिन भारत की इसरो ने अब चंदा मामा दूर के फासले को घटाने पर तुल गई है। बीजेपी के मरकजी वजीर जितेंद्र यादव के नए साल 2020 में चंद्रयान 3 को लॉन्च किए जाने के ऐलान के बाद अब इसरो ने इत्तला दी है कि इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ आगे बढ़ा दी गई हैं। इंडियन एयरफोर्स के 4 ओहदेदारों को गगनयान प्रोग्राम के लिए मुंतखब करके रशिया में इनकी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग भी शुरू करवा दी जाने वाली है। इसरो के चेयरमैन के सीवान ने एक प्रेस मीट में बतलाया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 250 करोड़ का बजट लगेगा, जबकि सारे भारत में अभी रोजमर्रा की अशियाओं के दाम आसमान को छू रहे हैं। लेकिन भाई मुल्क के लिए तरक्की जरूरी है ना। Chandrayaan 3 is government has approved, and it is that the project is now formed.
the activity is going on Chandrayaan 3 very smoothly, and Chandrayaan 3 configuration will be almost similar to Chandrayaan 2. Only thing is, in that Chandrayaan 2 we had orbiter, lander, rover configuration. Here this orbiter already functioned will be used. So Chandrayaan 2 will be having mostly a lander and rover and with a propulsion module. And in this one, if you see this Gaganyaan, we have good progress in 2019 Gaganyaan, and many of the designs were completed, and astronauts have the selection process is over. Now the 4 astronauts identified for training purpose, that process also completed. Now the training for these 4 astronauts will be planned in the third week of January of this year. Lot of progress have happened in 2019. One major thing happened was, apart from the spaceport at SDSC Shah, the land acquisition for a second spaceport is initiated. And this spaceport is going to be in Thoothukudi district of Tamil Nadu. सारी दुनिया के इजारादार माने जाने वाले मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने आज ऐलान किया है कि मशरिकी वुस्ता में उनका मुल्क 750 मिलिट्री ट्रूप्स रवाना करने जा रहा है। इराक के बगदाद में वाक़े यूएस एम्बेसी पर मुवाफिक ईरान एहतजाजियों के एम्बेसी पर हमले किए जाने के बाद ये ऐलान किया गया। उन्होंने आगे कहा कि फौरी तौर पर मिलिट्री के जवान वहां पर जाएंगे, बाद में IRF टीमों को भी वहां रवाना किया जाएगा, जहां पर बैनुल-अक़वामी ममालिक ने साबिक़ा में केमिकल हथियारों के शुबे में वहां की हुकूमत को ख़त्म कर डाला था और वहां से कोई ऐसा हथियार बरामद नहीं कर पाई थी। बीजेपी पार्टी के दोबारा चमत्कारी सत्ता हासिल करने के बाद गुज़िश्ता साल का रोना रोते हुए भारत के सैकड़ों लोगों ने नॉन सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर पर अचानक 19 रुपये मजीद बढ़ा देने के लिए बीजेपी हुकूमत के मुल्क के लोगों के लिए नए साल का तोहफा करार दिया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि साबिक़ा कांग्रेसी हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाकर बीजेपी हुकूमत ने चमत्कारी सत्ता हासिल तो कर ली, लेकिन नाचना नहीं आया तो आंगन को टेढ़ा बतला रही है। इसके अलावा सैकड़ों मुल्क के लोगों ने ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए आवाम का जहन बड़ी बड़ी नाकामियों की जानिब लाने की कोशिश भी की कि रेल के किरायों में बढ़ोतरी, LPG सिलेंडर में बढ़ोतरी, ATF प्राइसेस की हाइक और साथ में राष्ट्रवाद को उछालकर सारे मुल्क में हैजान बर्पा करना वगैरह वगैरह। और इन सभी को जारिया साल हुकूमत के कारनामे सभी लोगों ने बतलाए हैं और ख़ास बात यह भी कही कि सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के ये कारनामे करोड़ों का जहन पलटाने में कामयाब रहे हैं। जबकि ये सवाल भी बड़ा अहम साबित हुआ है कि PM मोदी के सब्सिडी छोड़ने वाले बयान पर कितने MPs ने इस पर अमल किया है, जबकि सभी को काफ़ी रियायत हासिल थी। PM मोदी के चहीते रफीक माने जाने वाले मुल्क की फौज के जनरल बिपिन रावत ने हालिया कई सियासी बयानात देने के बाद आज आवाम को समझाने की कोशिश की कि वो सियासत से दूर रहते हैं। इनकी मियाद ख़त्म हो जाने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने अभी इन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया है। आज इन्होंने मुल्क के हालात पर तबसरा करते हुए आवाम को समझाने की कोशिश की कि वो सियासत से दूर रहते हुए जमहूरी अंदाज में मुंतखब की जाने वाली हुकूमत की पासदारी करते आए हैं और फौज के तीनों शोबों को टीम वर्क की तरह आगे बढ़ाएंगे भी। वाज़ेह रहे कि साबिक़ा में मुतनाज़ा राफेल डील के कागजात पार्लियामेंट से हैरत अंगेज तरीके से गायब हो गए थे, लेकिन मुल्क के मौजूदा माहौल में किसी की तवज्जो उस जानिब जा ही नहीं सक रही है।